A dense fog accompanied by a cold wave disrupted travel across northern parts of the country, affecting flights and trains, in fact, road traffic as well. A brisk wind speed further exacerbated the icy conditions, leaving people shivering as thick fog blanketed several cities across the parts of northern India. Commuters were severely impacted as well, while flight operations at Indira Gandhi International Airport has delayed. Now, with aircraft not equipped with Cat 3 technology particularly affected, due to the foggy conditions that have been prevailing for a week now, the Delhi airport has witnessed several flight diversions, many cancellations and over 400 flight delays. Zero visibility prevailed for 9 hours at Palam, marking the longest spell of the season. The city's primary weather station Safdarjung and recorded the 8 hours of zero visibility. The India Meteorological Department has issued a warning for cold wave conditions over parts of northern India. Over the past 1 week, cold wave to severe cold wave conditions have been recorded in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. All right, my colleague Ashik Mir from Srinagar is joining me live on the broadcast. Now, in fact, let me first straight ask him about the conditions that have been prevailing specifically where in fact snowfall has begun. The winter season has commenced already, but cold wave conditions and orange alert has been issued in Delhi. But what happens to be in fact in the upper reaches of the country where there is in fact also a big dense fog and snowfall is already happening. Ashik Mir, kindly tell us about in fact how exactly the winter specifically in Jammu Kashmir and Srinagar is looking like. देखिए बिल्कुल अगर हम सिमरन बात करें आज रात के तापमान की जो कि -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर हम साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है किया गया है। फिलहाल 40 दिनों का चिलकलान जो है श्रीनगर पूरे कश्मीर घाटी में चल रहा है और 21 दिसंबर से ये चिलकलान का हार्श विंटर पीरियड जो है शुरू हुआ है, जिससे आम लोग कहीं न कहीं परेशान लग रहे हैं। यहाँ पर वाटर टेप जो होते हैं या जितनी भी नदी नाले हैं या डल लेक की अगर हम बात करें जितनी भी चीजें हैं वो जम जाती है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस तरह की कंडीशन फिलहाल इस हार्श पीरियड विंटर में देखने को मिल रही है। स्नोफॉल की प्रोडिक्शन जो है आईएमडी ने पहले ही दी है और आज से लगभग 7 जनवरी तक जो है स्नोफॉल जो है एक्सपेक्टेड है। खासतौर पर अगर हम हिली एरियाज की बात करें और प्लेन्स की बात करें, ये प्रेडिक्शन दी गई है कि हिली एरियाज में काफी ज्यादा स्नोफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है जो 2 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है काफी दिनों तक बंद रहा, जहाँ पर कई सारी टूरिस्ट गाड़ियां जो है फंसी हुई थी, कई सारे टूरिस्ट जो है वहां पर स्ट्रैंडेड थे। लेकिन अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से काम कर रही है कि किस तरह से जब स्नोफॉल यहाँ पर हो जाएगा तो किस तरह से इन रोड्स पर काम किया जाएगा, खासतौर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स हो या जितनी भी इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है उनको तैयार किया गया है ताकि लोगों और टूरिस्टों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कश्मीर में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो फुली बुक्ड है, चाहे हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर काफी तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हैं जो खासतौर पर इन चीजों को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से कश्मीर में स्नोफॉल होता है। फिलहाल अगर हम हाई रीच के इलाकों की बात करें जिनमें कुपवारा, मस्सिल, टंगदार, केरन ये वो इलाके हैं जब यहाँ पर स्नोफॉल पड़ता है तो इन इलाकों में रोड जो है कट ऑफ रहते हैं, जिसको लेकर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। सिमरन। All right, Ashik, in fact, thank you for giving us this update as in fact winter season is already underway. Now, cold wave conditions are at this focus where the orange alert has also been issued for the national capital for the cold day conditions. Now, Brian Thomas is joining me live from Delhi. Brian, a very good morning at this point. In fact, what we are talking about the IMD issuing in fact cold day conditions and also recording the temperature 10 degrees Celsius at 5:30 a.m. this morning. Dense fog enveloping the parts of the national capital, reducing visibility to zero in several areas. Meanwhile, the air quality index in the national capital continues to be in the very poor category. Share more details. Well, Simran, definitely. In the early morning, if we talk about the morning time at around till 6 a.m.,
there was definitely dense fog and there was poor weather conditions that have even led to the cancellation of at least 45 flights and both international and domestic at the IGI airport. Additionally, nearly 25 flights, including 13 domestic and 4 international, have also been diverted. Even flights to Srinagar and Amritsar were also impacted with several cancellations due to zero visibility in those very regions. And yesterday also, at the airport, at the IGI airport, there were several disrupted, flights were disrupted for the second consecutive day with 19 flight diversions, numerous cancellations, and over 400 delays as well. There were also officials who were saying that the diversion occurred between 12:15 a.m. and 1:30 a.m., including 13 domestic, 4 international, and 2 non-scheduled flights as well. So yes, but now if we talk about this very time, that is 8:40, in the situation, if we can put it through for the fifth consecutive day, if we put it through, the situation is a bit better in terms of what it was yesterday, because you see the smog like conditions are there, but it isn't that affecting or it isn't that poignant at this point of time, even though till yesterday the fog conditions were very persistent. But now if you talk about now at this point of time, it isn't that persistent. And even to the fact that you see at this very circle, you see there is a lot of vehicular movement as such. So in terms of, if you see there is smog, there becomes a difficulty for two-wheelers and four-wheelers to travel from one place to another. But here if we talk about at this point of time, the situation is slightly better in terms of the smog-like situation. When we were reporting yesterday also, when I was at Vijay Chowk itself, the situation was very bad, because, I was showing you as well, it was very dense at that point of time. But now, if I'm talking about now and this point of time, situation is still far better than it was yesterday. Simran. All right, Brian, thank you for in fact adding these details and giving us more information. Now also joining me live from Shimla is my colleague Kameshwar Sharma. As in fact, my colleagues are telling me from Delhi that the situation has become better, but for the northern parts of the India, the IMD has issued a cold wave and orange alert as well. कामेश्वर, ये बताइए कि शिमला में कैसा हाल है अभी? अगर आईएमडी की प्रेडिक्शंस के हिसाब से देखा जाता है तो जो स्नोफॉल है वो भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में और ऐसी बहुत हिमालय के पास जगह हैं जहां पे प्रेडिक्टेड है। बिल्कुल, यदि देखा जाए जो आईएमडी के अनुसार खासकर जो 3 दिनों तक जो मौसम खराब बताया गया है, जिसमें जो देखा जा रहा है कि 5 और जो 6 को जो अधिक जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते जो 6 और 7 को जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताएगी। अगर हम सिटी की बात करें, राजधानी शिमला यानी कि कैपिटल की बात करें, तो यहाँ पर जो 19 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और खासकर जो तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो अब बर्फबारी का जो सिलसिला है वो अधिकांश देखा जा रहा है जो ऊंचे वाले क्षेत्र है, खासकर अगर जिला शिमला की बात करें या लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर, उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिलहाल जो बर्फबारी अत्यधिक देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो देखा जा रहा है जो राजधानी शिमला में जो उछाल देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना तो कहीं जो पर्यटक है वो राजधानी की जगह, राजधानी शिमला की जगह अब जो कुल्लू मनाली की तरफ अधिक जा रहे हैं, क्योंकि जो कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 से 2.5 फीट अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। और वहीं जो मौसम वैज्ञानिक शोभित घटिया ने बताया कि खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, जिला शिमला, सिरमौर और कुल्लू की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो खासकर जो पर्यटक है वो मनाली से सोलंग नाला और वहीं अगर जो देखा जाए अटल टनल, कोकसर और केलांग की तरफ अत्यधिक देखने को मिल रहा है। अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो नारकंडा और कुफरी और हाटू पीक में जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो शिमला में जब तक विंटर कार्निवाल था, आज विंटर कार्निवाल का जिस तरीके से जो आयोजन किया जा रहा है उस दौरान देखा जाता है, लेकिन जो बर्फबारी को देखने के लिए जो पर्यटक है अभी भी जो नारकंडा, कुफरी और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहां पर बर्फ पड़ी है उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर देखा जा रहा है प्रदेश में अभी तक जो 22 जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें भी खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारी को नीति निर्देश दिए हैं कि खासकर जो पर्यटक स्थल है जो कुफरी, मनाली, सोलंग नाला या फिर अटल टनल, कोकसर, जिप्सर, जिन क्षेत्रों में जो पर्यटक खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से भी जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आता है तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और जो सड़क मार्ग से बर्फ को हटा दिया जाए। और खासकर जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी गिरती है उन क्षेत्रों में पहले ही जो मशीनरी है वो तैनात कर दी गई है ताकि जो पर्यटकों को
किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जिस तरीके से जो 5 जो जनवरी तक भी जो खासकर जो दिल्ली से मनाली, दिल्ली से शिमला, धर्मशाला के लिए अतिरिक्त वोल्वो बस लगाई गई थी ताकि जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले सके। ऐसे में पर्यटकों के लिए काफी इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। अगर देखा जाए यदि कोई पर्यटक फंस भी जाता है तो जगह जगह रेस्ट हाउस ऐसा प्रबंध किया गया है, जो सरकारी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस या आईपीएच रेस्ट हाउस है वहां पर उनको रेस्क्यू करने के बाद वहां रख दिया जाता है। क्योंकि पिछले वर्ष देखा गया था या उससे पहले भी जिस तरीके से चंद्रताल पे जो पर्यटक फंसे थे या फिर जी अन्य कामेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। और देहरादून से भी हमसे जुड़ रहे हैं सचिन कुमार। सचिन, वेरी गुड मॉर्निंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देहरादून में भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है कि रेनफॉल, स्नोफॉल या ऐसे क्लाउड्स का आना और उसकी वजह से ठंड का तापमान में बढ़ना एक्सपेक्टेड है, तो अभी स्थिति क्या है? जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है ओवर नॉर्थ एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, तो देहरादून में, उत्तराखंड में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करी जाए तो देहरादून से इस वक्त जो है धूप की अगर बात करें तो लगातार जो है कल भी यहाँ पर मौसम साफ था और आज भी मौसम साफ है। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान था। हाँ, लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करी जाए तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो आज 5 तारीख है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज कई जिले ऐसे हैं, जिलों की बात करें रुद्रप्रयाग है, चमोली है और उत्तरकाशी है, या कुमाऊं जिलों की बात करें पिथौरागढ़ है, नैनीताल है। तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आज जो है बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है और साथ ही जो है बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर बात करें, चोपता है और नीतीमाड़ा है और औली है, ऐसी जगह है जहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। धनौल्टी में भी स्नोफॉल हुआ था लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर चक्राता की बात करें, क्योंकि देहरादून से करीबन जो है यहाँ से 50 किलोमीटर करीब चक्राता पड़ता है, तो वहाँ पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिली थी। और साथ ही जो है जिस तरीके से तापमान में गिरावट हुई है, क्योंकि लगातार वही धुंध की बात करें तो लगातार जो है इससे पहले जो है देहरादून की हम अगर बात करें तो देहरादून के जो ऑल अराउंड जो यहाँ पर जो वैली है, क्योंकि देहरादून वैलियों के बीच में है, तो चारों तरफ जो है धुंध देखने को मिलती थी। लेकिन हाँ, 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम बिल्कुल बढ़िया है। और वही मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार की हम बात करें या ऋषिकेश की बात करें तो गंगा तट है, तो वहाँ पर लगातार जो है धुंध दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर से अलर्ट किया हुआ है। जो भी वाहन चालक है वो अपनी फॉग लाइट को यूज करके जो है सड़कों पर चले और साथ ही जो इंडिकेटर्स का भी प्रयोग करें। लेकिन एक मैसेज है न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से कि जो भी पर्यटक जो है उत्तराखंड की तरफ रुख करता है, ठीक है, एंजॉय करें, आए उत्तराखंड में, क्योंकि देवभूमि है यहाँ पर। और साथ ही जो है एक चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ पर बर्फबारी ज्यादा है तो वहाँ पर बिल्कुल रिस्क ना ले, क्योंकि जिस तरह की वीडियो जो है All right, Sachin, I'll request you to kindly stay on with us as my other colleagues are also joining me. And from there, I'll also like to pick up from the situation of zero visibility being maintained at the IGI, which has been the highest yesterday. From, in fact, Palam Airport, zero visibility for 9 hours. That's the highest at this stretch. The IMD has informed on that note. I have my colleague Arzu Seth. Arzu, in fact, the zero visibility mark for, in fact, the Palam Airport has made a record in itself. And when we are talking about the dense fog at once and another, the visibility reducing, leading to more fog on the roads and subsequently more, in fact, accidents. What is the situation there at the airport where zero visibility continues to be for 9 hours stretch? Simran rightly mentioned there has been record that that has been picked up by the IMD that in the entire northern India. And also when we talk about this, there are several trains that are running delay. As we talk about, even passengers have told about the Vande Bharat is also running late by 6 to 8 hours. Not only that, but also Lucknow Mail, Howrah Express, there are trains which usually on time are running late due to the fog, the dense fog that is prevailing in the Delhi NCR and also the northern India. Also, let me show you the visuals from the ITO. As you can see, there is a thick layer of smog. Here also, there has been a slight improvement than yesterday, but today also, as you can see, there is a smog. The buildings near are not much visible. And also, when we talk about this, there is one more
challenge that is coming up is that the pollution level has in fact increased once again, and the pollution has reached to very poor category. Today also the pollution level is being recorded at the 377, means the AQI is recorded at 370. So there is again the pollution that has reached to very poor category. In the past few days we have seen some relief, and that's why the graph stage 3 has also been removed, but once again the pollution level has also increased along with the temperature that is dripping, and also the cold wave that is prevailing in the entire Delhi NCR. All Yes, right, Azu, in fact, thank you for adding these details. I also have my colleague Mahinder Mahi joining me live on this. In fact, Mahinder, as over 400 flights continue to be cancelled or departed late, at the IGI, and at the Palam airport stations, the temperature drops have been recorded. And at the same time, when we're talking about in Noida, what is the situation of the weather? There is dense fog that is for the northern parts, and Noida is not that far. How is exactly, in fact, the morning looking like, as we're talking about a thick blanket of smog engulfing the national capital? बिल्कुल सिमरन, देखिए आज भी नोएडा में जो है ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो हवा है काफी तेज चल रही है, जिसके कारण ठंड अब लोगों को ज्यादा लग रही है। सुबह से जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से तस्वीर नोएडा की सड़कों की है, और लगातार IMD ये कह भी रहा है कि देखिए 1 जनवरी के बाद से ही जो ठंड का प्रकोप है वो दोगुना हो जाएगा। कल के मुकाबले अगर आज कंपैरिजन करें तो कोहरा नहीं है, मगर जो गलन वाली हवा है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, जो वहाँ के आसपास के इलाके हैं, जो सोसाइटी है, जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ लोगों को ठंड सबसे ज्यादा लग रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि देखिए ऐसे मौसम में अपने बच्चों को थोड़ा आप सावधान रखें, यानी कि क्योंकि रविवार का दिन है, जो बच्चे हैं उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है काफी बीमार कर सकता है। और आने वाले समय में यानी कि 2-3 दिन बाद जो है बारिश के भी अनुमान है, ऐसा IMD का कहना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी पड़ रही है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासकर नोएडा NCR, चाहे गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, आसपास की इलाकों की बात करें, वहां लगातार जो ठंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार का ये बताया कि मंगलवार को फिर से जो बारिश होगी और उसके साथ साथ जो शीत लहर है और जो कोहरा है उसका प्रकोप जरूर देखने को मिलेगा। वहीं बढ़ते ठंड को देखते हुए नोएडा के तमाम स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल हो, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो या अन्य माध्यम के बोर्ड हो, सबको बंद करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ क्योंकि एक तरफ कोहरे का तो अटैक है ही और ठंड का अटैक है ही, तीसरा जो है वो है पॉल्यूशन। नोएडा NCR में अब पॉल्यूशन भी बिल्कुल पीक पे है, यानी कि कल भी हमने देखा किस तरीके से कोहरे के साथ साथ जो धुंध की मोटी चादर थी वो भी नोएडा के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया है, और आज की बात करें तो आज भी 250 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि दिल्ली NCR के लोगों को दो तरफा मार पड़ रही है, एक तो ठंड का सितम और दूसरा पॉल्यूशन का। वहीं क्योंकि रात के समय में सबसे ज्यादा जो ठंड है वो महसूस की जाती है, ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ अलाव जलता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी यही कहा है, जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि ऐसे मौसम में कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकला, और निकल भी रहे हैं तो खाली पेट ना निकले, क्योंकि अगर आप खाली पेट निकलेंगे तो ठंड आपको लगने की ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे में फुल बाजू के कपड़े पहने, दस्ताने पहने और कैप लगाए, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड है। दिसंबर के महीना पूरा निकल गया था, जो तापमान था सामान्य था, मगर जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.